गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। और मेरा ये पहला वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी आई एम मेक so many videos regarding the preparation strategy of UPSC, and first of all I will discuss about the how to the passing strategy of FMG. So firstly I will discuss about the passing strategy because many बहुत आदमी का ये मिथ है, जो एस्पायरेंट्स हैं, दोज हु आर पासिंग फ्रॉम foreign medical colleges like Ukraine and like Russia and like China, Philippines, etc. They have the common myth that they will not do well. Now it is entirely very wrong. ये आपको कोई भी अगर ऐसा बोलता है, if they tell you, so you can give them a tight slap by performing them well, because especially speaking, if you believe me, I was to IFMG. So I completed my MBBS in the year 2003, thereby then passing the FMG exam. At that time there was no FMG, like there was a MCI, same thing, and I got the highest rank of 249. So it is not like that कि the FMG are so very, they doesn't know or they doesn't study or like they don't know the concept. It is entirely wrong. And presently now I am postdoctoral in medical oncology, and I'm in here in Durgapur in Sanaka Medical College and Hospital as an associate professor in medical oncology after passing my MD medicine in PMCH Patna Medical College. सो ये बहुत ही गलत बात है और ये मैं इंटायरली सुनते आया हूँ। तो आई थॉट टू शेयर इन द यूट्यूब चैनल, एंड पर्टिकुलरली जो हमारे सीनियर हैं डॉक्टर प्रोफेसर राजीव कुमार सर, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और राम मनोहर लोहिया में हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो है एफएमजी में आप थोड़ा सा कुछ लोग मैंने जो एफएमजी के जो पास आउट्स हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग बट दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर। नॉट एबल टू प्रिपेयर मतलब क्या, डिमोरलाइज हो जाना। तो यहाँ पे आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, यहाँ पे आपको जो है बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। मैं आज आपको कुछ कुछ टिप्स मैं दूंगा, और टिप्स ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट ए मोटिवेशनल वीडियो एट ऑल, बिकॉज see they, if you are passionate and if you are hard bound, you have to win. That is the main strategy of FMG exam. एंड मैं FMG एग्ज़ाम के साथ साथ मैं UPSC का भी कुछ टिप्स दूंगा। ओके, नो, फर्स्ट यू हैव टू पास द FMG दोज, क्योंकि मैं टुडे आई मेड द वीडियो स्पेशली फॉर द FMG एस्पायरेंट्स, दोज हु आर पासिंग and those who are giving the exam on because this is March, so probably in June they will be giving the exam. And I have taught many students for the FMG preparation, and still I am teaching one of the student also. So main thing what I tell them and before teaching is to clear the concept, because if concept is not cleared, so no one can fulfill your dream. Now basically we all know. Now I'm coming directly to the point, I'm coming directly to the strategy point. How should you prepare? Now for example, I am because see, now it is March. Now after March it is 3 months are there. Okay, 3 months are there, and I will this is my only starting video. I will discuss the questions with you. I will discuss the explanation also with you, because now it is a starting video. I am just giving you a just a bit of it. Okay, so now as far as examination is concerned, you all know that how many what are the quantity of questions it comes. So now 19 subjects are there, and 19 subjects are to be covered. Now it is very similar to NEET PG or to FMG. So if you get the question paper of NEET PG also for preparation, you should try solving that, and if you get the FMG question paper also, you should try solving that.
Now it is not the time to read the textbook right now because the time has gone. बेटर तो यही होता कि हम टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करते, क्योंकि देखिए मेन क्या है कि कोई भी कंसेप्ट ग्रैस्प करने के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। वेदर मेडिसिन में है तो हैरिसन है, माइक्रोबायोलॉजी में है तो पनीकर है, फॉरेंसिक में है तो आप पिल्लई का ले सकते हैं या रेड्डी का ले सकते हैं या सुरेंद्र गुप्ता का ले सकते हैं या गौतम विश्वास का ले सकते हैं। तो ये सब मेरा बोलना बेकार है, चूँकि नाउ इट इज़ द टाइम, नाउ हार्ड बाउंड टाइम। सो मैं यहाँ पे जो आया हूँ, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मैं पहले यूपीएससी से रिलेटेड आपसे कुछ बात जैसे मैं आई एम ऑलरेडी टॉकिंग टू यू, टॉकिंग टू द all of the FMG aspirants, and then I will be talking about the UPSC also. यहाँ पे in the case of FMG solutions एक book है which I found because it was I think because see when I passed my graduation in from Moscow, I am second of first medical state medical university which is in Moscow right now. But it was a very prestigious medical university, and उस समय हम लोग का टाइम में इतना, मतलब मैं आज बता रहा हूँ 21 साल पहले का बात, एंड वी डिड नॉट गेट एनी एक्सेस। ये ना मोबाइल था और ना कुछ बुक्स थे और ना कुछ मोटिवेशनल वीडियो जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये इस तरह का कुछ था नहीं। तो वी वेयर इन वेरी ट्रबल, तो हम लोग को बहुत ट्रबल होती थी। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग को ऐसा हो, और मैं सब्सिक्वेंट फिर वीडियो दूंगा, फिर मैं 2 दिन या 3 दिन बाद मैं फिर आऊँगा, मैं 2-3 दिन या फिर दिन में आऊँगा। अभी मैं आपको बोलना ये चाहता हूँ कि FMG अभी जो लास्ट मिनट अप्रोच है ये आप कैसे करेंगे। तो 19 सब्जेक्ट्स है, यू ऑल नो, स्टार्टिंग फ्रॉम एनाटॉमी टू फिजियोलॉजी टू बायोकेमिस्ट्री टू फॉरेंसिक मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, एनेस्थेसियोलॉजी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो नाउ मैं चाहता हूँ कि आप मेरा जो मेरा जो पढ़ने का स्ट्रैटेजी था उस ज़माने में, मैं आपको आपसे मतलब शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द FMGE 2004 आई रिमेंबर। सो एट दैट टाइम हम लोग के पास बुक्स नहीं होते थे, एंड वी डू नॉट हैव एनी गाइड लाइक बुक और एनी टाइप ऑफ boot revision or something like coaching and etc. So we were faced very hard at that time. So यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो है बुक्स भी है, गाइड भी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अभी जो है, बिकॉज इट इज़ नाउ हार्ड टाइम, और आप लोग तो डिप्रेशन में तो हैं ही, लेकिन डिप्रेशन का कोई कारण नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर इस आप वीडियो को देखोगे तो आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आई एश्योर यू दैट all of the person who are watching this video will at least get 150 out of 150, that is sure। लेकिन आपको ये वादा करना होगा कि आपको पढ़ना होगा, कि बिकॉज देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क। मैं ये आपको पहले बता दूँ, मैं कटिबद्ध करके हाथ जोड़ के बता रहा हूँ कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जो भी कोई बोलता है कि ये है इधर से क्वेश्चन वो ये सब इलीगल है, और ये सब मतलब मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद पॉडकास्ट से पढ़ा हुआ हूँ, और ये सब बेकार की बातें हैं। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क, एंड इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू विल विन। सो एज फार एज कंसर्न्ड द FMG सॉल्यूशंस एक बुक आया है, एंड और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुमार सर का, जो कि UPSC के, मैं उसमें भी कंट्रीब्यूट किया हूँ उस किताब में भी, और जो UPSC एग्ज़ाम के लिए है। मैं UPSC एग्ज़ाम में बाद में आता हूँ, मैं पहले जो FMG के जो एस्पायरेंट्स हैं मैं उस पर कुछ प्रकाश डालूँगा, उसके बाद मैं फिर कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर UPSC में आऊँगा, जो कि डॉक्टर राजीव कुमार सर ने बनाया है बुक। तो इसमें जो FMG सॉल्यूशंस जो बुक है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी मार्वेलस बुक विच इज़ रिटन बाय सिराज अहमद एंड दीपक मारवा। ये हमको हमारे डॉक्टर राजीव कुमार सर जितने मेरे करीब हैं, डॉक्टर सिराज अहमद सर और डॉक्टर दीपक मारवा भी मेरे करीबी हैं, बिकॉज मैं डॉक्टर दीपक मारवा से मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर सिराज अहमद से मिला हूँ, बिकॉज
जब मैं भी क्लास डॉक ट्यूटोरियल्स और मैं स्पीड में पढ़ाता था, तो एक बार मैं उनसे मिला था। तो मैं उनसे एक बार बात किया था सिराज अहमद से कि आप ऐसा कोई बुक बना रहे हैं कि नहीं कि जिसमें एफएमजी का ये हो। तो वो उन्होंने बताया कि इस बार जो मैं 9th एडिशन निकाला हूँ ये आप पढ़ें, और चूँकि सिंस यू आर एफएमजी टीचर ऑल्सो, सो यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये मैं कोई आपको पैरवी नहीं कर रहा हूँ और इस पर मेरा कोई ये नहीं है। अगर आप चाहें तो इस बुक को ले सकते हैं। ये आप याद रखिए, एफएमजी सॉल्यूशंस है 9th एडिशन का, and it is a very good book written by Marwa and Deepak Marwa and Siraj Ahmed, and it is a very good book। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बुक को जब मैंने देखा तो इस पे जो है 19 सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊं। 19 सब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, जो मैंने बोला पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी, पीएसएम मेडिसिन, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, ईएनटी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, एनेस्थीसिया, साइकेट्री एंड रेडियोलॉजी। तो ये 19 सब्जेक्ट्स हैं। तो नाउ इसमें क्या है, अभी हमारा जो एफएमजी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो एफएमजी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, द क्वेश्चंस आर जस्ट इक्विवेलेंट टू नीट, आप कह सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी इस बारे में कहा कि अगर आप नीट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नीट का क्वेश्चन पेपर अगर देख रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नीट से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं जस्ट एक स्ट्रेटजी आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप एफएमजी सॉल्यूशन का अगर आप, चूँकि अभी टाइम नहीं है, क्योंकि सी आई एम वेरी मच कीन अबाउट बुक्स, क्योंकि मेरे समय में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एफएमजी, एंड यू वोंट बिलीव मी, आई टोल्ड यू दैट आई गॉट 249, मेरा सबसे हाईएस्ट रैंक मेरा नहीं था, क्योंकि मेरे से एक सीनियर थे, मेरे से एक हायर रैंकर और भी थे, उनको 282 कुछ था, तो आउट ऑफ 300, क्योंकि 150 पासिंग मार्क्स था, जो अभी भी है। सीबीटी उस समय नहीं थी जो कि अभी है, और बट क्वेश्चंस वेर जैसा है वैसे, लेकिन क्वेश्चंस का स्ट्रैटर्जी अभी बहुत बदल गया है। नाउ प्रिपरेशन क्या है कि अगर आप लास्ट 5 इयर्स का, या इसमें मैं देखा हूँ, इसमें मैं जो एनालिसिस कर रहा था इस बुक में, एफएमजी सॉल्यूशंस में, इसमें जो मैं देखा हूँ कि अगर आप इससे प्रिपरेशन करोगे तो इसमें जो है आपका, like suppose if you are starting from anatomy, they have given from every topic, from every chapters, they have given the questions, and which are likely to come, or more likely they have came in the last FMG exam. So like suppose in anatomy में, embryology में भी they have given, then coming from upper limb, lower limb, then osteology also they have asked the question, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। मैं नेक्स्ट वीडियो में या इस वीडियो में मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा जरूर, क्योंकि आज मेरा वीडियो मैं शॉर्ट रख रहा हूं, क्योंकि आज तो जस्ट आई हैव जस्ट स्टार्टेड एज ए इंट्रोडक्शन टू यू। सो मैं फिर देन न्यूरो एनाटॉमी, नाउ कमिंग फ्रॉम इन फिजियोलॉजी ऑल्सो दे हैव सी दिस, द यूनिक फीचर्स ऑफ दिस बुक इज दे हैव डिवाइडेड द इनटू चैप्टर्स। और आप इतना इत्मीनान रखिए, जो मैं इस बुक से, चूँकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये ऐसा कोई नहीं है कि हमको कोई बोला है बोलने के लिए कि नहीं आप बोलिए, नो, नॉट लाइक दैट, बिकॉज सिंस आई एम ए टीचर एंड फर्स्ट, देन अ डॉक्टर एंड देन अ कंसल्टेंट। तो ये किताब जब उन्होंने मुझे भेजा कि सर आप ये किताब थोड़ा देखिए कैसा लगता है, फिर मुझे बताइएगा, क्योंकि इससे पहले मैं और भी जो राइटर्स का किताब मैं देखा था, वो भी अच्छा है, ऐसा बात नहीं है। जैसे हमारा कमल केबी साहब का बुक है, ही इज़ ऑल्सो मार्वेलस मैन, ये बहुत अच्छे किताब उनका भी है, सब चैप्टर्स के वाइज के लिखे, उनका भी अच्छा है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन है कि आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कंसेप्ट आपका अगर क्लियर हो जाता है तो आपका जो है, आप कोई भी क्वेश्चन कैसे भी करके घुमा के देगा तो यू विल एबल टू सॉल्व दैट। नाउ मैं एनाटॉमी में तो बोल दिया, फिजियोलॉजी में भी देखिए आपको वही बात है, दे आर कमिंग टू ईच एंड एवरी चैप्टर्स, लाइक दे आर कमिंग टू जनरल फिजियोलॉजी, देन मसल फिजियोलॉजी, देन रीनल, देन एंडोक्राइन, देन जीआई, देन रिप्रोडक्टिव, देन रेस्पिरेटरी, देन कार्डियोवास्कुलर। तो मैं चाह रहा था कि अभी चूँकि यू हैव गॉट वेरी लेस मंथ्स, लाइक 2-3 मंथ्स, तो मैं चाह रहा था कि ये आप मैं इससे भी क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा आपसे, एंड मैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल। मैं को शुरू करने से पहले मैं ये टॉपिक से शुरू करूँगा। सो एंड सेम आई विल गो फॉर नाउ
इन द बायोकेमिस्ट्री ऑल्सो। बायोकेमिस्ट्री में भी आप देखिएगा, आप जब इस बुक पे दिस द मैजिक द यूनिक फीचर्स ऑफ दिस बुक इज लाइक ईच मैं जो बोला ईच चैप्टर हैज़ बिन डिवाइडेड। सो ये जो है जैसे लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, देन अमीनो एसिड मैकेनिज्म हो गया, देन एंड एम्पल नंबर ऑफ इमेजेस, जो कि अभी इमेजेस हम लोग का टाइम में क्या था कि व्हेन वी पास्ड इन द ईयर 2005 आई स्टिल रिमेंबर, हम लोग के समय में इमेजेस बहुत कम थे। तो हमारे समय क्वेश्चन तो वही था लेकिन इमेजेस बहुत कम था। तो एट दैट टाइम क्योंकि ये CBT नहीं था उस समय, अभी तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो अभी जो ये है, और अभी मैं जो स्ट्रेटजी अभी मैं रिसेंटली जान पाया हूँ कि रिसेंटली डॉक्टर राजीव कुमार सर दुर्गापुर आए थे, बिकॉज ही वॉज अ एक्सटर्नल एग्जामिनर, ही वॉज अ नॉट एक्सटर्नल एग्जामिनर, ही वॉज बीन सेंट बाई NMC टू इंस्पेक्ट अवर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी इन आसनसोल सब डिविजनल हॉस्पिटल। तो और आज मैं प्रेजेंटली मैं धनबाद में हूँ, और चूँकि मैं एक्चुअली आई एम स्टेशनड इन दुर्गापुर, एंड वहाँ मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एज यू ऑल नो मेरा प्रोफाइल से आप, एंड प्लस मैं सनाका मेडिकल कॉलेज में भी हूँ एज ए एसोसिएट प्रोफेसर देयर इन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। एंड उसके अलावे मैं, लेकिन प्रेजेंटली मेरा इतना हेक्टिक शेड्यूल है कि मैं अभी जस्ट आई एम टीचिंग द PGT के कुछ स्टूडेंट, और UPSC और FMG को मैं अभी होल्ड पे रखा हूँ, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट अप्रोच किए थे। लेकिन मैं सिंस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डॉक्टर राजीव कुमार सर, उन्होंने बोला कि सिंस आप FMG हो तो यू काइंडली हेल्प दोज हु आर FMG एस्पायरेंट्स, आप उनको बोल सकते हो कि कैसे व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। तो सी द प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, सो देर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। एंड मैं ये बुक देखा तो ये बुक में मुझे वो चीज़ नज़र आया जो मैं प्रिपरेशन करता था अपने ज़माने में। सो आप इस बुक को लेके ये मैं आपको यहाँ फ़ोटो में दिखाना चाहता हूँ। ये बुक है, ये FMG का, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वो मरवा साहब का फ़ोटो है, और यहाँ से डॉक्टर सिराज अहमद और CBS पब्लिशर्स का है। तो ये आप ले सकते हैं, और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत ज़्यादा प्राइस है नहीं। तो इसमें क्या है कि सबसे एडवांटेज है ये है कि अगर लाइक सपोज एज आई टॉक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री ऑल्सो, इन फार्माकोलॉजी ऑल्सो व्हेन यू विल स्टार्ट द प्रिपरेशन, सो आप देखिएगा दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट चैप्टर्स। बहुत किताब ऐसे होते हैं कि जिसमें क्या है कि एट रैंडम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसमें आपको पता नहीं चलता है कि ये मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है। ओके, नाउ यू इफ लाइक सपोज आई एम टॉकिंग द एग्जाम्पल ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में लाइक सपोज आपको लाइक जनरल फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो आपको उसमें कितना आपका प्रिपरेशन है, तो ये देखने के लिए आपको ज़रूरी है कि क्वेश्चन सॉल्व करने का, और फिर उस पर फिर आपका रेफरेंस बुक टेक्स्ट बुक देखने का, या तो KDT या गुडमैन गिलमैन अगर आपके पास हो, नहीं भी हो तो दे हैव गिवन यू एम्पल एप्लीकेशन एम्पल एक्सप्लेनेशन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो मेरे खातिर मेरे अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन दिस, एंड दे हैव रिसेंट दे हैव गिवन ऑल्सो क्वेश्चन और रिसेंट पैटर्न, बिकॉज रिसेंट पैटर्न में जो क्वेश्चन आया है और जिस तरह क्वेश्चन पूछा गया है उस तरह का क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड। सो आई थिंक इट विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल, and in the pharmacology all sections also. And now I am coming to every detail. I am coming to even to the pathology. Now pharmacology हो गया, मैं pathology में आ रहा हूँ। pathology में भी आप देखिए, they are asking the questions first of cell injury, inflammation, then hypodynamic neoplasia, then immunity. each in chapter they are giving the questions, and particularly क्या है कि वो recent questions पे, ठीक है। और हेमेटोलॉजी में भी उन्होंने पूछा। ये एक्चुअली क्या है, हमको बुक इसलिए मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, ये मुझे पसंद इसलिए आया है कि ये रिसेंट ट्रेंड पे क्वेश्चंस मैंने सेट किया हुआ है, और इमेजेस बहुत एम्पल हैं जो कि आपको बहुत ज़रूरी है। तो सेम लाइक इन द लिवर पैथोलॉजी ऑल्सो दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइनल सिस्टम और जेनेटिक्स में। उसके बाद फिर सिस्टमिक में फिर इन लोगों ने आया है रेस्पिरेटरी सिस्टम पैथोलॉजी, then renal, then respiratory physiology, GI pathology, and then endocrine pathology, then hepatology pathology, then like that. तो इस पे अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो करते करते इट विल बी हैबिचुएटेड। और मैं जैसे कहा हूँ आपको, मैं लास्ट 5 to 10 years, एटलीस्ट 10 years का अगर आप पेपर कर लेते हो
तो 10 इयर्स भी नहीं, अगर आप 5 to 6 7 इयर्स का भी पेपर कर लेते हो, देन आई थिंक इट विल बी 80 to 90 to 95% प्रिपरेशन फॉर यू ऑल। एंड उसके बाद तो फिर आपको फिर वो रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आप अटक रहे हो वहाँ पे रेफरेंस टेक्स्ट बुक देखना है, और रेफरेंस टेक्स्ट बुक देख के आप यू कैन ऑल्सो अप्रोच मी ऑल्सो, आई एम ईजिली अप्रोचेबल, और तो उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। और मैं बहुत शॉर्ट, ये चूँकि ये वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट बनाया, मैं अब तुरंत आ जाता हूँ यूपीएससी का ना। देखिए अब क्या है कि जो लोग जो एफएमजी क्लियर कर लिए हैं, जिनको अब एफएमजी में यूपीएससी में जिनको जो एग्ज़ाम अभी होने वाली है 25 तारीख को, तो अब क्या है कि दिस बुक एक्चुअली लेट मी शो यू दिस बुक इज़ द अल्टीमेट बुक एंड द मैजिक बुक, एंड इट इज़ रिटन बाय प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुमार सर, जो कि खुद एक टॉपर रह चुके हैं यूपीएससी के, और अभी प्रेजेंटली वो डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में है, अखिल अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस जो हमारा आरएमएल हॉस्पिटल है, तो उसमें सर्जरी में है। और उन्होंने ही मुझे कहा था, और प्लस मैं इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट भी किया हूँ, बहुत ज़्यादा तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं किया हूँ, सब सर का ही कंट्रीब्यूशन है। मैं जस्ट उस पर थोड़ा सा जैसे जस्ट 1-2 पॉइंट ऐड किया हूँ, दैट्स इट। सो अब ये बुक जो है यूपीएससी का बेस्ट क्यों है, मैं इसके बारे में बताऊँ आपको। जो एफएमजी क्लियर कर चुके हैं, अब तो ये मैं एफएमजी के प्रिपरेशन के बारे में बोला था ना, दोज हु क्लियर्ड द एफएमजी, चूँकि मैं इसमें ये मेरा वीडियो में आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन एफएमजी एंड यूपीएससी, and those who are not passed, those who have not passed, those who have passed, and how they are prepared, how should be their preparation strategy on UPSC combined medical services. Now देखिए हमारा यूपीएससी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप ये गाइड पढ़ लेते हो, चूँकि मैं अगर आप ये गाइड खरीदे हो, ये जो अभी जो रिसेंटली 2025, इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल इन फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन, और आप वहाँ ऑर्डर करके अगर एक लेते हो, चूँकि मैं अब एक स्टूडेंट को पढ़ा भी रहा हूँ अभी, तो मैं स्टार्ट किया हूँ, तो मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ देखा कि वहाँ पे नाउ द सर हैज़ गिवन last 17 years question paper, which is more than sufficient for preparation of UPSC combined medical service। अगर ये आप अच्छी तरह से कर लेते हो, अच्छी तरह से समझ लेते हो, क्योंकि बिकॉज एक्सप्लेनेशन आर ऑल्सो देयर। मैं यूपीएससी एंड एफएमजी मैं दोनों में डिस्कस करूँगा क्वेश्चन, मैं अगले वीडियो में, मैं आज बता रहा हूँ खाली। आप जैसे मान लीजिए कि 2009 में 2008 का मैं जस्ट एक 2008 से का मैं आपको जस्ट एक स्ट्रैटेजी मतलब मैं बता रहा हूँ कि हाउ दे हैव गिवन द क्वेश्चन, एंड द एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो मार्वेलस, क्योंकि इस पे आपको एंड प्लस सर ने सबसे यूनिक पॉइंट है सर का कि ये दे हैव गिवन द सर हैज़ गिवन द रेफरेंस ऑल्सो। सो अगर आपको, चूँकि मैं आपको बोला कि विदाउट टेक्स्ट बुक इट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन अभी ये टाइम है नहीं कि मैं सब में टेक्स्ट बुक निकाल के पढ़ते रहूँ, जो कि हम लोग शुरू से करते आए हैं। तो इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस को समझिए कि ये पेपर 1 का, पहले तो आपको समझना है कि ये पेपर 1 का क्वेश्चन है कि पेपर 2 का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सिलेबस तो आपको पता ही होगा, मैं सिलेबस में नहीं जा रहा हूँ। तो आपको जैसे पेपर 1 में जैसे क्वेश्चन आया, तो इस क्वेश्चन को पहले, मैं क्वेश्चन में भी अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन का आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा, क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, ठीक है। इट इज़ अनलाइक इन एफएमजी और नीट वेयर द क्वेश्चंस आर वेरी कंसेप्चुअली आस्क्ड। हमारे यूपीएससी में क्या है कि इन द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन CMS, दे आर आस्किंग द क्वेश्चन डायरेक्टली। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, दो आई हैव नॉट गिवन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, बट आई नो सिंस आई एम अ फैकल्टी एंड आई हैव टॉट। और अभी मैं चूँकि धनबाद में स्टेशन हूँ, मुझे स्पेशली यहाँ बुलाया गया इन धनबाद रेलवे हॉस्पिटल टू गिव अ लेक्चर ऑन द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड टू डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस एट्सेट्रा। तो मैं वहाँ भी जाने वाला हूँ, मैं सेम चीज़ बोलूँगा जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जो बोल रहा था कि पेपर 1 में आप क्या करिए, जैसे आप प्रिपरेशन में हैं तो पेपर 1 को पहले पकड़िए, और पेपर 1 का जितना क्वेश्चंस है उसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। और बनाने में आप जहाँ पे अटकते हो वो आप जो हमारे डॉक्टर राजीव कुमार सर ने जो व्हाट्सएप में जो ये दिए हैं, जो व्हाट्सएप में जो ग्रुप में उन्होंने जो एक ग्रुप बनाया है, उस पर आप दीजिए, एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व द क्वेश्चन, एंड आई विल डेफिनेटली नॉट ओनली सॉल्व द क्वेश्चन एंड आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो।
लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि सर ने जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने अपने से दिया है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, एंड ही हैज़ ऑल्सो गिवन द रेफरेंस। सो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको अलग से ये करना पड़े। लेकिन फिर आप अलग से अगर मेरा हेल्प लेना चाहो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, बिकॉज मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा भी रहा हूँ, और मैं पढ़ा इससे ही रहा हूँ। मैं आई एम टीचिंग बिकॉज आई एम नॉट गोइंग, सिंस इट इज़ नाउ नॉट द टाइम टू टेक हेल लॉट ऑफ बुक और उसके माथा पे दे देना इतने पाइल्स ऑफ बुक। तो ये चीज़ है। तो हमारा सेम चीज़ पेपर 1 में भी है। पेपर 1 में दे आर आस्किंग द क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली। सी यूपीएससी जो एग्जामिनेशन मैं देखा हूँ लास्ट 17 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ सर का जो अभी दिए हैं, और आई हैव कंट्रीब्यूटेड ऑल्सो मेनी स्मॉल क्वेश्चंस आई हैव एडेड ऑल्सो हियर। सो इसमें राजीव सर का तो आप देखे ही हैं, इसमें यू विल सी माई फोटो ऑल्सो बिकॉज आई हैव गिवन कंट्रीब्यूशन हियर। तो सो हियर इज़ माई फोटो, हियर यू कैन सी this is my photo here, and I have contributed, and very little bit, not as such मैं नहीं किया हूँ, लेकिन सब सर का आशीर्वाद से ही मेरा हुआ है, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट ए यूपीएससी एस्पायरेंट, आई हैव नॉट पास्ड यूपीएससी, बट एज सच कि मैं यूपीएससी में बहुत पैशनेट था। मैं नहीं दे पाया, उसके कारण था कि मैं बहुत पीजी में बहुत इंटरेस्टेड था, एंड आई वेंट टू डू द पीजी इन मेडिसिन, देन आई इन पीएमसीएस, देन आई वेंट टू एम्स टू डू पोस्ट डॉक्टरल मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एंड डिस्पाइट दैट मैं स्टिल बीइंग अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं प्रैक्टिस में तो हूँ ही, लेकिन मैं आई एम वेरी मच पैशनेट इन टीचिंग, एंड स्टिल मैं उसको मैं चला रहा हूँ, और मैं अपना कोचिंग कर रहा हूँ। तो मेरा अभी प्राइम मेडिसिन में यूपीएससी को ही कंसर्न में रखा हूँ, और बाकी पीजीटी में 2-3 स्टूडेंट है उसको मैं हेल्प करता हूँ। तो मैं जैसे बोल रहा था कि जैसे मान लीजिए आप 2008 क्वेश्चन रखिए, उसको आप पढ़िए, मैं आपको फिर मैं आऊँगा वीडियो में, मैं फिर सब्सिक्वेंट वीडियो दूंगा, उसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ के फिर आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि हाउ द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, एंड देन यू रीड द एप्लीकेशन, देन यू रीड द रेफरेंस, and then you explanation, and then you will yourself understand the question, that how what type of question or how the question has been asked। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है, इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इसमें जो सर ने जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट, हाउ एक्चुअली आई टेल दिस बुक एज ए मैजिक बुक। ऐसे नहीं कि मैं सर ने बनाया और मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया अबाउट 1%, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें देखिए शुरू से ही स्कीम ऑफ CMS एग्जाम का सिलेबस भी लिखा हुआ है, जो नया दोज हु आर प्रिपेयरिंग ऑल्सो, फॉर देम ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। दूसरा बुक्स में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि एज पर माई ओपिनियन आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा हेल्प भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बुक बनाया ही उन्होंने है जो कि यूपीएससी के टॉपर थे। सो इट इज़, एंड नाउ ऑल्सो ही इज़ ऑन द यूपीएससी, ऑल्सो ही इज़ एग्जामिनर, एंड ही इज़ कमिंग। इस बार भी उन्होंने दुर्गापुर आया था, मैं फेसबुक में दिया भी था, सर से मिलने का मौका मिला मुझे। तो इसमें क्या है कि इसमें देखिए, इसमें दे हैव गिवन कि पार्ट 1 में किस तरह का एग्ज़ाम, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क। सो और ये जो है हमारा मेडिसिन का क्वेश्चन, एंड इसमें क्या किया ना, एक चीज़ है कि मेडिसिन में ही इन्होंने सब चीज़ इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। तो ये जैसे हमारा नीट में अलग है कि फिजियोलॉजी है, इसमें डायरेक्टली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डायरेक्टली, एंड बायोकेमिस्ट्री एज सच नहीं है, लेकिन बट यू हैव टू गेन द कंसेप्ट ऑफ, टेक द कंसेप्ट एंड देन यू हैव टू लर्न। और इसका उपाय यही है, चूँकि 25 को इफ़ आई एम नॉट द रॉन्ग एग्ज़ाम है यूपीएससी का, तो आपको जो है अभी वो सब नहीं सोच के आपको डायरेक्टली जंप कर जाना है टू प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। और मेरे अनुसार दिस यूपीएससी दिस बुक इज़ द मार्वेलस बुक। इससे आप पढ़िए और सब स्टार्ट एंड इफ़ यू वांट टू टेक माय हेल्प ऑल्सो, यू कैन टेक द हेल्प, and you can ask me the question, you can ask in the group also, or you can ask in my personal also, and मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, आप मुझे चाहे तो मुझे ये भी कर सकते हैं। लेकिन आपको मेन है कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और ये जो सर ने जो गाइड बनाया है प्रसाद कंबाइंड मेडिकल सर्विस बुक, इट इज़ अ वेरी 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 यूज़फुल, क्योंकि आपने वहाँ देखा, आप अगर कंट्रीब्यूटर्स और जो पास किए हैं, जो जिनका आप अगर उनका वर्ड्स पढ़िएगा, दे हैव ओनली स्टडीड दिस एंड दे हैव पास्ड, सो माइंड इट। बट द थिंग इज़ दैट यू हैव टू प्रिपेयर रोबस्टली। तो मैं ये बोल के आज का मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। मैं 2-3 दिन या 4 दिन बाद मैं फिर आऊँगा, मैं डिस्कस करूँगा। आई विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ FMG, और मैं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा इन पैथोलॉजी, इन माइक्रोबायोलॉजी। वो शफल्ड क्वेश्चंस होंगे,
and that questions will be had been asked last 5 to 6 years. I will discuss it on this YouTube channel only, एंड देन आई विल अगेन उसमें मैं फिर वो ख़त्म करके मैं यूपीएससी का कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा. एंड नाउ आई हैव दिस वीडियो इज़ वेरी फर्स्ट वीडियो टू मी. आई एम जस्ट टेलिंग यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ रोबस्टली. आपको चूँकि मेन है कि आपका स्ट्रेटजी ज़रूरत है, आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है. तो मैंने जैसे आपको बोल दिया कि ये हमारा यूपीएससी जो एफएमजी हो या जो नीट जो कंप्लीट कर चुके हैं या जो एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए अगर वो यूपीएससी में करना चाहते हैं तो दिस बुक इज़ द बेस्ट. और अब जो एफएमजी एस्पायरेंट हैं जिनको एफएमजी देना है, चूँकि आई एम कंसर्न टुडे ओनली ऑन द एफएमजी पीपल, बिकॉज मैंने सुना जब डॉक्टर राजीव सर ने बताया था और भी बहुत कुछ बोल रहे थे कि बहुत मिथ्स एफएमजी पे आता है, तो मुझे बहुत दुख हुआ चुके बिकॉज आई माई सेल्फ इज़ फ्रॉम एफएमजी एंड नाउ आई एम ए पोस्ट डॉक्टरेट एंड एसोसिएट प्रोफेसर. सो इट इज़ बहुत ही बेकार बात बोलता है जो भी अगर कोई बोलता होगा नेगेटिव अगेंस्ट एफएमजी. ऐसा नहीं है. हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, जो हमारे इंडियन ग्रेजुएट्स पढ़े हैं. सो वी हैव लर्नड मच मोर फ्रॉम देम. सो अब हो सकता है कि इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दिए होंगे या हो सकता है, इस पर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता. तो मैं एफएमजी के बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एफएमजी में आप जैसे कि ये बुक जो है, ये बुक आप ले सकते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी आई थिंक इट इज़ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. दे हैव गिवन द प्राइस ऑल्सो हियर इफ आई एम नॉट misleading. Yeah, I think it is around 1500 to 2000 rupees. But the main advantage of this book, which Siraj Ahmed, Dr. Siraj Ahmed, dear Dr. Siraj Ahmed has given, is throughoutly ये revised है और with 2024 का क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है. और सबसे पहला है कि एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी तरह से किया हुआ है कि आपको जो है यहाँ से आप बुक में मिलाओगे तो फिर इट विल बी अ कंप्लीट प्रिपरेशन, जैसे मैं पहले बोल चुका. तो अब आई हैव टोल्ड यू अबाउट द मोटिवेशनल, एंड मोटिवेशनल बोलिए या मैं चाह रहा था कि ये इस तरह का वीडियो मैं दूं तो मैं दिया. और मैं नेक्स्ट 2-3 दिन बाद मैं फिर आई विल बी कमिंग एंड आई विल बी डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस ऑन यूपीएससी एंड सम क्वेश्चंस ऑन एफएमजी एंड विथ एक्सप्लेनेशन. और इस बीच में आपको अगर कुछ एनी हेल्प यू रिक्वायर, यू डायरेक्टली कम टू द CMS ऐप. जो CMS का जो ये है हमारे जो डॉक्टर राजीव सर ने बनाया है, उसमें आप आइए एंड यू आस्क द क्वेश्चन. And if you personally, if you want to take my coaching also, you can take. And बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, बेस्ट टू एवरीथिंग, बेस्ट टू एवरीवन. बिकॉज यूपीएससी का भी एग्ज़ाम जो है 25 को तो निर्धारित हो ही गया है. और हमारा जो जून का जो एफएमजी एग्ज़ाम है वो भी जून में ही होगा. अभी वैसे डेट्स आया नहीं है, लेकिन बट देर इज़ लास्ट थिंग विच आई वांट टू कंक्लूड हियर इज़ देर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क. सो आप पढ़िए एंड यू विल बी डिटरमाइंड एंड यू विल विन. जब हम लोग जीत सकते हैं जब, तो आप लोग क्यों नहीं जीत सकते. तो फ्रॉम दिस थिंग आई एम एंडिंग माई वीडियो एंड आई विल मीट यू. आई विल 2 or 3 days I will again post it. I will again come to YouTube and share some questions. As I told you earlier also, I will share some questions on both UPSC and FMG. Thanks.